इस देश में कारों को लेकर दीवानगी है। यह देखते हुए कुछ हद तक समझ में आता है कि हमारे अधिकांश शहरों की संरचना कैसी है और उपनगरीय जीवन की इच्छा के लिए मूल रूप से लगभग हर किसी के पास न केवल एक वाहन होना आवश्यक है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय उसमें काफी समय भी बिताना पड़ता है। हालांकि कार रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों को इस बात का पूरा एहसास नहीं है कि कार रखने के दौरान उनकी कितनी संपत्ति बर्बाद हो रही है। वे महंगे हैं, मूल्य में तेजी से गिरावट आती है, आपको नियमित रूप से उनमें गैस भरनी होगी और उनका बीमा कराना होगा। वह वास्तव में जुड़ना शुरू हो जाता है। एक विशिष्ट लागत विश्लेषण। तो वह कार आपको कितनी महंगी पड़ेगी? आइए एक विशिष्ट वाहन और परिदृश्य पर नजर डालें जो लगभग किसी भी मध्यम वर्गीय अमेरिकी परिवार में फिट होगा। हम एक नई टोयोटा कैमरी का उपयोग करने जा रहे हैं और ये सुविधाओं और आपके स्थान के आधार पर लगभग $20,000 $30,000 तक में बिकती है। तो हम पैक के ठीक बीच में किसी चीज को शूट करेंगे और इस उदाहरण के लिए मान लेंगे कि किसी को $25,000 में एक चीज मिलती है। और हमें बिक्री कर के बारे में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह अधिकांश लोगों पर भी लागू होगा। 6% एक काफी सामान्य राज्य बिक्री कर दर है। इसलिए यदि हम इसे कार की कीमत पर जोड़ते हैं तो हमारे पास कुल बिक्री मूल्य $26,500 है। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस प्रकार की कार के बारे में बात कर रहे हैं, या चाहे वह नई हो या पुरानी। जो महत्वपूर्ण है वह भुगतान की गई वास्तविक कीमत है। फाइनेंसिंग। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। अधिकांश लोग अपनी नई कार के लिए नकद भुगतान नहीं करते हैं और आमतौर पर इसे 3 से 5 साल के बीच के लिए फाइनेंस कराते हैं। इसके अलावा अधिकांश लोग कोई महत्वपूर्ण अग्रिम भुगतान नहीं करते हैं या अपनी पुरानी कार का सौदा नहीं करेंगे। इस उदाहरण के लिए हम मान लेंगे कि हम $5,000 नीचे रख रहे हैं या किसी व्यापार के लिए $5,000 प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास $21,500 का वित्तपोषण बचा है और चलिए 48 महीने के ऋण के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार के ऋण पर दरें अभी औसतन 7% के आसपास हैं, इसलिए हम इसे लेकर चलेंगे। इससे ऋण की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान में to a shiny new luxury car after landing a major business deal. The car, with its high-end features and stunning design, was a real head-turner. However, what John hadn't factored in were the hidden costs associated with owning a luxury car. The maintenance costs, insurance premiums, and the depreciation value of the car quickly added up, leaving John in a financially tight spot. Next, we have the story of Lisa, a high-flying executive from San Francisco. Lisa purchased a luxury car to celebrate her promotion. However, the high monthly payments quickly became a burden. Lisa found herself constantly worrying about making the payments and maintaining her car, which negatively impacted her overall quality of life. Now let's take a look at Robert, a small business owner from Texas. Robert bought a luxury car thinking it would be an investment, but he soon realized that cars, especially luxury ones, are depreciating assets. The value of his car decreased significantly over time, and when he tried to sell it, he found that it was worth much less than what he had originally paid. These stories illustrate a common theme. The true cost of owning a luxury car goes far beyond the initial purchase price. There are the ongoing maintenance costs, high insurance premiums, and the rapid depreciation of the vehicle. And these costs can quickly add up, leading to financial stress and even debt. So, while a luxury car may seem like a status symbol, it's important to consider the financial implications of owning one. It's not just about being able to afford the car, but also being able to afford to maintain it and bear the cost of its depreciation. To sum up, luxury cars can indeed lead to financial difficulties. As we've seen from the case studies, the hidden costs associated with owning a luxury car, such as maintenance costs, insurance premiums, and depreciation,
can quickly add up. While a luxury car may seem like a status symbol, it's important to consider the financial implications of owning one. Remember, a luxury car is not an investment, it's a depreciating asset. So before you get drawn in by the allure of a shiny new luxury car, think about the true cost of ownership and whether it's really worth it. A car should be a means of transportation, not a source of financial stress. So choose wisely and make informed decisions. अब इनमें से 2 कारों की आवश्यकता के बारे में सोचें क्योंकि आप शादीशुदा हैं और आप दोनों काम करते हैं। अब आप बंधक आकार का भुगतान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास कुछ चल सके। और यदि आप एक लग्जरी कार या एसयूवी चला रहे हैं जिसकी कीमत $40,000 या उससे अधिक है तो क्या होगा? आप उम्मीद कर सकते हैं कि केवल एक कार के लिए आपकी कुल मासिक लागत आसानी से $1,200 से अधिक हो जाएगी। यदि आपको इनमें से 2 अधिक महंगे वाहनों की आवश्यकता है तो बेहतर होगा कि आप प्रति माह करीब $3,000 खर्च करने के लिए तैयार रहें। कार की लागत बनाम बचत। मैं हर दिन लोगों को उनके वित्त से मदद करता हूं, यह मेरा काम है। इसका मतलब है कि मुझे आम तौर पर समस्या क्षेत्रों या अवसरों को उजागर करने में मदद करने के लिए किसी व्यक्ति के वित्त की जांच करने में कुछ समय बिताना पड़ता है। अगर कोई एक चीज है जो मुझे किसी भी चीज से अधिक दिखाई देती है तो वह यह है कि लोग सेवानिवृत्ति या अन्य चीजों के लिए जितनी बचत कर रहे हैं उससे अधिक अपने वाहनों पर खर्च कर रहे हैं। निस्संदेह जब भी कोई कहता है कि उनके पास अपने सेवानिवृत्ति खाते या बचत खाते में डालने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है तो आप उनके मासिक खर्चों की जांच करते समय लगभग हमेशा महत्वपूर्ण कार लागत पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे वह $300 प्रति माह हो या $700 प्रति माह। वे हर महीने यह भुगतान कर सकते हैं, फिर भी बचत खाते या अपने सेवानिवृत्ति खाते में डालने के लिए $100 एक साथ नहीं निकाल सकते। यहाँ एक सामान्य नियम है, यदि आपकी कुल कार की लागत आपकी बचत से अधिक है तो आपके पास अपनी क्षमता से अधिक वाहन है। इसका मतलब है कि यदि आप अपनी कार को सड़क पर रखने के लिए प्रति माह $500 का भुगतान कर रहे हैं, फिर भी आप अपने बचत या सेवानिवृत्ति खाते में रखने के लिए हर महीने $500 नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप मुसीबत में हैं। जितना आप बचा सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, उससे अधिक पैसा किसी वाहन पर खर्च करके आप कभी भी मनचाही संपत्ति नहीं बना पाएंगे। वह पैसा जो आप कार भुगतान, गैस, बीमा और अन्य सभी चीजों पर लगाते हैं, वह वापस नहीं आता है। आप पैसा नहीं कमाते हैं और यह कोई निवेश नहीं है। साथ ही यदि आप अपने वाहन पर प्रति माह $1,000 खर्च कर सकते हैं और फिर भी प्रति माह $1,000 बचा सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से यदि आप अपनी कार की लागत में कटौती करते हैं तो आप अभी भी अधिक पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप बाहर जाने वाले प्रत्येक डॉलर का मिलान कर रहे हैं और इसे किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो एक संपत्ति और एक निवेश है। कम से कम आपको इसे इसी तरह से देखने की जरूरत है। आपको कम से कम उतना ही बचत करना होगा जितना आप खर्च कर रहे हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि आपकी कार आपको गरीब न बनाए? जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कार आपको बहुत तेजी से गरीब बना सकती है। लागतें बढ़ जाती हैं और यदि आप परिवहन के किसी साधन पर भविष्य के लिए निर्धारित राशि से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं तो संपत्ति बनाने में लंबा समय लगेगा। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश को कार की आवश्यकता होती है, बस यही इस सब की वास्तविकता है। लेकिन आप यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं कि आप अपनी कार की लागत को यथासंभव कम रखें ताकि आप साल दर साल वाहन के रखरखाव पर ही नहीं बल्कि संपत्ति बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकें। यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पुरानी कार आपका पैसा बचाएगी। याद रखें, कारों के मूल्य में हर साल अक्सर 20% तक की गिरावट आती है। यदि आप 1 साल पुरानी कार खरीद सकते हैं तो आप हजारों डॉलर बचा सकते हैं, जिसका मतलब है कि फाइनेंस कराते समय ब्याज कम होगा और मासिक भुगतान भी कम होगा। यदि आप एक नई कार देख रहे हैं
तो यह तब तक ठीक है जब तक आप लंबे समय तक कार रखने की योजना बनाते हैं। जब आप मुसीबत में तब पड़ते हैं जब आप पहली कार का भुगतान किए बिना हर 3 या 4 साल में एक नई कार खरीदते रहते हैं, या नई कार खरीदने से पहले मुश्किल से ही उसका भुगतान करते हैं। इससे आपके लगातार जरूरत से ज्यादा खर्च करने का दुष्चक्र बनता है। एक नई कार एक अच्छा सौदा हो सकती है यदि आप जानते हैं कि आप इसे वित्तपोषण शर्तों से परे रखने जा रहे हैं। वाहन जितना बड़ा होगा, उसकी लागत उतनी ही अधिक होगी। छोटी कारें आमतौर पर पूर्ण आकार की कारों की तुलना में सस्ती होती हैं, और कारें आमतौर पर ट्रक या एसयूवी की तुलना में सस्ती होती हैं। इसलिए केवल उतनी ही कार खरीदें जितनी आपको वास्तव में आवश्यकता हो। आपकी स्थिति और ड्राइविंग ज़रूरतें तय करेंगी कि आपको किस प्रकार के वाहन की आवश्यकता है, लेकिन अति न करें। जैसे जैसे आप वाहन के आकार और कीमत में वृद्धि करते हैं, आपको आम तौर पर बीमा प्रीमियम में वृद्धि और प्रति गैलन कम मील भी मिलेंगे। इसलिए आकार में शुरुआती लागत के अलावा और भी बहुत कुछ है। ऊंची लागत अक्सर अन्य सभी क्षेत्रों में कम हो जाती है, और यह वास्तव में तेजी से जुड़ना शुरू हो जाएगी।